Am I audible? Please acknowledge me. Yes, ma'am. Now you are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so कोई बता सकता है HTTP क्या है? If you don't know, it's okay, but at least I am expecting कि आपको basic पता होना चाहिए. Ma'am, it is a protocol. It is a protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. good. और HTTP के बारे में क्या बोल सकते हैं? Ma'am, It provides security to the domain. It provides security to the domain. Okay. It uses port number 80. Yes, very good. Yes, Bharti. It uses a port number 80. Okay. Or? Ma'am, it has two methods, post and get. Okay. It has two methods, post and get. Okay. Ma'am, request response protocol. Like. Okay. Yes, we can say. Okay. So there are many points that we have covered in the lecture as well, but it's okay. So first of all, we can say HTTP is a hypertext transfer protocol. It stands for hypertext transfer protocol. Second thing, we can say that it's generally used for, we can say like client, it works on the client server model, right? So I have discussed with you about the handshaking process in the theory lecture, right? मैंने बताया था already. Right? So HTTP generally किसके लिए use होता है? That whenever we are requesting for any URL on the browser, at the backend side, the HTTP protocol works, right? And it uses the port number 80. यहाँ पे उसका जो predefined port number है, that is the port number 80, right? So today we will perform about how the HTTP request and the response take place between the client and the server, right? So first of all, you need to open the Cisco Packet Tracer. पहले Cisco Packet Tracer open करो. Okay, so let me share my screen here. Now, first of all, you have to take 3 PCs, right? 3 or 4 PCs ले लो. As for now, I am taking 3 PCs here. One switch to connect all these PCs. And one server to connect with this switch. Now I am connecting all these devices with the help of automatically configured connection. Okay. So this all the devices are connected with each other, right? Now what we have to do here, we have to configure the HTTP server. यहाँ पे हमको क्या करना है? HTTP server को configure करना है, right? So what we have to do in this case, first of all, we name this server as HTTP server. यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगी? I name this server as HTTP सर्वर. यहाँ पे मैंने HTTP सर्वर नेम दे दिया, right? Now I have to
configure at the internal side. अब मुझे internal side configuration करने हैं, right? So just I'll go in the server, go to the desktop, IP configuration, and I'll give the IP address 10.10.10.0. Click on the tab button, subnet mask will be automatically calculated. Now close this tab. ये मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट? अभी बाकी है, बट आई हैव जस्ट गिवन द आईपी एड्रेस टू द सर्वर, राइट? नाउ व्हाट आई हैव टू डू, हर बार हम क्या करते हैं कि कोई भी पीसी को कॉन्फ़िगर करते हैं, तब कॉन्फ़िगर मतलब क्या कि उसको आईपी एड्रेस एलोकेट करना, डिफॉल्ट गेटवे डालना, वही सब, राइट? So when we are giving the IP address to any of the PC, what we have to do is, generally ये habit मेरी है कि कोई भी पीसी को जब मैं आईपी एड्रेस देती हूँ तब एक बार मैं बाहर एक नोट लिख देती हूँ दैट दिस पीसी बिलोंग्स with this address, right? With this IP address, right? So I am giving the IP address at the outer side, so I'll give it as 10.10.1. Same here, if you can see, the 10.10.1. Now the same for second PC, but I'll just change the host part. मैं सिर्फ host part को ही change करूंगी, right? मैंने बताया था that in the IP address it mainly divides the whole IP address into two parts, network ID and the host ID, right? So यहाँ पे ये host part change करूंगी, that will be 10.10.10.2. Then for third PC, 10.10.10.3. So यहाँ तक कर लो पहले. Ma'am, what if we want to remove particular device? By mistake, Device if we को have taken. हाँ, so यहाँ पे देखो ये क्रॉस वाला दिख रहा है, डिलीट, ये वाला टैब चूज करके उस पर क्लिक करोगे, सो वो डिवाइस डिलीट हो जाएगा. Okay, okay, ma'am. As and when it is done, let me know in the chat box. ओके, सो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया. नाउ विल गिव द आईपी एड्रेस एट द इंटरनल साइड, राइट? सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डेस्कटॉप, IP configuration, IP addresses will be, I have already assigned at the outer part, right? So the same IP address I will use here, right? So that is 10.10.10.1. Click on the tab, click on the tab. Now the default gateway, अब वो कौन से गेटवे से जा रहा है? So एक ही गेटवे यहाँ पे है, right? जहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है वो सर्वर पे ही जा रही है, right? So we have to use server IP address as a default gateway, right? So I'll write the IP address of the server. So 10.10.10.0. Close this tab. Do it for all the PCs. So for the second PC, desktop, IP configuration, IP addresses will be same as I have given here.
close this tab. Now go to the server side. अभी सर्वर साइड क्या करना है, पहले इतना कंप्लीट करो, तीनों को आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे दे दो एंड जस्ट एक्नॉलेज मी इन द चैट बॉक्स. Ma'am, if we are writing the IP address at the outer side, so it is just the sake for of naming purpose or the both नहीं, just internal. for our reference. Just for our reference. It won't affect anything. Okay. It is just a note, dear. It will also work if the both internal and outer external IP address doesn't match. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मैच नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा. वही तो बोला. आउटर इसलिए दे रहे हैं कि आउटर हम किस लिए दे रहे हैं कि ताकि हमें पता चले, लेट्स से कि अभी तो हम स्मॉलर नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राइट. लेट्स से कि अगर हमारे पास 100 पीसीज है, राइट, सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पीसी का मैंने आईपी एड्रेस क्या दिया था, राइट. सो मेरी ये हैबिट है कि मैं आउटर देती हूँ, राइट. ओके ओके. तो फॉर दैट पर्पस, ताकि चेक ना करना पड़े फिर. यस यस, अंदर जाके चेक ना करना पड़े. मैम, डिफॉल्ट गेटवे एट सर्वर साइड. सर्वर साइड पे अभी डिफॉल्ट गेटवे नहीं होगा क्योंकि सर्वर यहाँ पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है. यस. ओके, आई थिंक इट्स डन, राइट. सो अब हम क्या करेंगे, जस्ट गो टू दी सर्वर. अब सर्वर पे क्या करना है, जस्ट गो टू दी सर्विसेज, राइट.
Now you can see here the list of services at left hand side. आपको left hand side सारी services दिख रही है. HTTP, DHCP, DHCP v6, right? So you are configuring the HTTP server. So you have to make sure that HTTP services are on. By default on ही होगी, but let's say कि अगर off है तो आपको ये services को on करना है, right? और बाकी यहाँ पे जो सर्विसेज है TFTP, लेट्स से कि TFTP, तो TFTP यहाँ पे ऑन है तो मैं उसे ऑफ करूंगी, राइट? उसकी जरूरत नहीं है मुझे. बाकी जो सर्विसेज जो ऑन है उसे आपको ऑफ करना है, राइट? सो यहाँ पे TFTP ऑन था, मैंने वो ऑफ कर दिया. लेट्स से कि NTP वो ऑन है तो उसे ऑन ही रखना है. तो यहाँ पे वंस यू आर डन विद दिस, आपको क्या करना है? यू हैव टू गो विथ index.html फाइल, राइट? यहाँ पे आपको index.html फाइल को एडिट करके चेक करना है that whether it works or not, right? Now what I am doing in this case, I am editing this file. So just click on index.html, right? And I am modifying this index.html file. Let's say कि यहाँ पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया. And then click on the save button. It will ask that you want to overwrite this file. Click on yes. Close this tab. Now just go to any one of these 3 PC, right? किसी एक PC में जाओ. Go to the web browser. Web browser में जाके क्या करना है? Just write the URL. So यहाँ पे हमने URL कौन सा लिखना है कि हम कौन से सर्वर से वो एक्सेस करना चाहते हैं, right? So I'll write 10.10.10.0. Just go and you can see here whatever the changes that I have made in index.html file, that is reflected over here. Can you see those changes? Yes, ma'am. तो ये करना है आपको. Just try it at your end. Okay, so I think everybody has done.
ओके, किसी को इसमें कोई एरर आ रही है? नो मैम। ओके, सो ये प्रैक्टिकल इजी था, राइट? सो दिस इज हाउ द HTTP सर्वर कैन बी कॉन्फ़िगर्ड, राइट? सो पूरा डिटेल में करवाया है एंड इट्स वेरी इजी, राइट? आई थिंक सबको ये हो ही गया होगा. So this is all about the configuration of the HTTP server, right? Now, I just wanted to know that how many of you have started the CCNA course and completed at least the quiz part? क्योंकि लास्ट टाइम हमारी लैब नहीं आई है, सो आपकी बैच का मुझे कोई स्टेटस ही नहीं पता है कि आप CCNA में कहाँ तक पहुंचे हो. Ma'am, not all the quizzes I have attempted, but started just. ओके, तो कितनी हुई है क्विज आपकी? I think of first chapter only. I don't know what's the due date. 15th March is the due date. मैंने मेल भेजा था, राइट? उसमें लिखा है that 15th March is the due date, पर 15th March एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, उसके पहले ही आपकी फाइनल एग्जाम्स हो जाएगी और उसके पहले ही आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा, क्योंकि 15th मार्च से आपकी एंड सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रही है, राइट? सो बिफोर एंड सॉरी मिड सेमेस्टर एग्जाम, तो मिड सेमेस्टर के पहले तो ये कंप्लीट करना ही है, राइट? सो माय कंसर्न इज कि आप लोग क्विज एटलीस्ट कंप्लीट कर दो और चैप्टर की एग्जाम्स भी एक्टिवेट हो गई है. Ma'am, till 5 only it is activated. हाँ, 5 तक हुई है, 6 से बाकी है आई थिंक Yes, ma'am. सबकी, राइट? सो 6 और बाकी के जो चैप्टर्स है 6 to 11 वो सारी मैं एक्टिवेट कर दूंगी दिस सैटरडे. सो वो उसके बाद आप कर सकते हो, राइट? सो सैटरडे को मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सैटरडे वो सारी क्विज एक्टिवेट कर दूंगी, सॉरी चैप्टर वाइज एग्जाम. सो यू कैन डू इट ऑन सैटरडे. वन मोर थिंग कि फाइनल एग्जाम के लिए एक दिन स्पेसिफिक, एक डेट में स्पेसिफिक आपको बताऊंगी, उस दिन ही आपको फाइनल एग्जाम कंप्लीट करनी होगी, राइट? फॉर ऑल द 11 चैप्टर्स, राइट? एक फाइनल एग्जाम होगी जब आप सारी चैप्टर एग्जाम कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद एक फाइनल एग्जाम होगी, वो आपको एक स्पेसिफिक डेट दी जाएगी एंड दैट विल बी अ सैटरडे और अ संडे, राइट? क्योंकि सैटरडे आपका टीचिंग ऑफ रहता है. सो सैटरडे या फिर संडे को एक डेट फिक्स होगी एंड दैट इज फिक्स्ड फॉर ऑल द डिविजन्स, राइट? सिर्फ आपके क्लास के लिए नहीं, सभी डिविजन्स में वही डेट में फाइनल एग्जाम्स ली जाएगी फॉर द CCNA, राइट? एंड on that day only you have to complete your final exam, right? फिर आपके पास कोई रीजन होगा कि नहीं कर पा रहे हो या बाहर हो, that's your problem, right? तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्विज, ये एग्जाम जो है वो एक ही बार एक्टिवेट होती है, राइट? ये रीएक्टिवेट नहीं हो सकती. सो आपको उसी दिन फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट करनी है. जब आप फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट कर लोगे उसके बाद एक फीडबैक एग्जाम रहेगी. फीडबैक एग्जाम मीन्स फीडबैक देने के बाद ही आप अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर पाओगे. वन मोर थिंग कि अगर सर्टिफिकेट जनरेट करना है सो एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 75%. एग्जाम के लिए 75% स्कोर करना जरूरी है. then and then only will be able to generate the certificate, right? उसके अगर 75% नहीं है कोई भी एग्जाम में, सो आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा. और सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा मतलब कि आपको जो 20 मार्क्स हैं मॉड्यूल के वो आपको नहीं मिल सकते. Ma'am, there is 2 courses shown, so in which among them मॉड्यूल which 1 ही one? करना है. Okay. अभी सिर्फ आपको मॉड्यूल 1 ही करना है. किसी ने गलती से मॉड्यूल 2 को स्टार्ट किया है तो मॉड्यूल 2 अभी नहीं करना है, मॉड्यूल 1 ही स्टार्ट करना है. और जो भी एग्जाम कंप्लीट करनी है, जो भी सर्टिफिकेट सबमिट करना है, वो मॉड्यूल 1 का पहले करना है,
राइट। सो किसी ने ऐसा बोला कि भाई मैडम मैंने तो एक मॉड्यूल किया पर मैंने गलती से दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द मॉड्यूल 1, राइट, दैट कंटेन्स 20 मार्क्स, जो मिड सेम पहले कंप्लीट करना है, और सर्टिफिकेट भी आपको गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करना है, राइट। सो वो आपको मिड सेम एग्जाम पहले करना है, और मिड सेम 1 के बाद आपका मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा, वो आपको मिड 2 के पहले करना है, राइट। सो बिफोर मिड 2 योर 2 modules should be completed and you should have a 2 CCNA certificate, Cisco certificate, right? So this course is very, very important, right? If you have not yet started, you can do in this lag. अगर आपने ये प्रैक्टिकल खत्म कर लिया है तो आप वो कोर्स स्टार्ट कर सकते हो इस लैब में, राइट। और आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख रहे हो डन डन, दैट मीन्स आई एम श्योर आपने किया ही होगा ये प्रैक्टिकल। आई विल नॉट से टू शेयर योर स्क्रीन, right? I trust you people. So you all have completed the practical. So just save this practical along with the screenshots, right? Screenshots ले लो, हर एक पीसी के स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी एक पीसी के स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बोल दो that for rest of the PC we have to do the same procedure, right? सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सर्विसेज के टैब में जो हमने HTTP की सर्विसेज जो कॉन्फ़िगर की है, जो index.html फाइल को मॉडिफाई किया है, उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में ले लो, राइट। सो आई थिंक यू ऑल नो दैट हाउ टू पेस्ट दिस स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट पेस्ट करने के बाद वो सिर्फ पेस्ट नहीं करना है, उसके बारे में 2-3 लाइन लिखनी भी है, राइट। मैंने अभी तक फॉर्मेट शेयर नहीं किया है, बट सून आई विल शेयर द फॉर्मेट विथ यू ऑफ द लैब मैनुअल, राइट। आपको जो लैब मैनुअल बनानी है उसका मैं फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दूंगी। Yes, this is practical 5. First was about the introduction to the packet tracer, right? जिसमें हमने CLI से सारा commands को implement किया था. Second was about networking commands. Third was about the email वाला था, I think. Email वाला हो गया है ना? Email configuration. Yes, ma'am. Done. Fourth is about topologies, and fifth is configuration of HTTP server. And why you people are not coming in the offline classes? Offline students are really enjoying, right? उनको यहाँ पे काफी मीन्स जो चीजें हैं ऑफलाइन में बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, वो लोग ऐसा फीडबैक दे रहे हैं। सो आई जस्ट से कि आप लोग भी अब आ जाओ यहाँ पे। ओके, आउट ऑफ स्टेट। ओके, सो बहुदीप आप हॉस्टल में नहीं रहते हो यहाँ पे? मैम हॉस्टल में रहते हैं, बट अभी तक हमने जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ है क्योंकि हम उदयपुर आ गए थे ना। तो मैम रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कैंसिल हो गया था, वो वापस नए मतलब रूम्स वापस अलॉट होंगे। ओके ओके। एंड मैम अभी तो हॉस्टल में जैसे वार्डन भी कोरोना पॉजिटिव है, तो पेरेंट्स ने भी मना कर दिया। ओके ओके, हाँ वो सारे फैक्टर्स है, बट ESE के ये मिड सेम के लिए तो आना ही है। मैम मिड सेम के लिए भी अभी हमारे पास जैसे ऑप्शन है, मधु मैम ने बोला था कि आप मेल डाल के छोड़ दो, आपका मिड सेम जब आप आओगे तब कंडक्ट करेंगे फिर। ओके, सो ऐसा ऑप्शंस है आप लोगों के लिए? यस मैम, क्योंकि अभी तो मैम बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये ऑप्शन है। मधु मैम से बात। फिर ठीक है, मैडम ने बोला है तो फिर हो जाएगा। बाकी जो लोग यहाँ राजकोट से ही है वो लोग एटलीस्ट आना शुरू कर दो, राइट? या फिर इस बैच में सब लोग बाहर से ही है?
What about you, Aditya? Aditya, Hello. Bharti. Yes, ma'am. Ma'am, I am from Udaipur. Okay, you are from Udaipur. Bharti? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, parents are not allowing, ma'am. Okay, आप कहाँ से हो? मैम मैं वैसे तो पटना से हूँ बट राइट नाउ आई लिव हियर इन राजकोट. ओके, सो आप राजकोट में ही हो? हाँ, राइट नाउ आई एम इन राजकोट. ओके, सो आप एक बार ट्राई तो करो. सेफ्टी I के साथ tried. आओगे तो इतना नहीं होगा. Ma'am, I tried to convince my parents, but they are not ओके actually. ओके ओके, सो After आई hearing कांट से about that, एनीथिंग. yes. हाँ, वो भी है. If parents are not allowing, so we cannot force you. Okay, what about you, Isha, Meghna? Isha and Meghna, are you there? Yes, ma'am. Where are you from, Isha? I'm from Rajkot. Okay, आप राजकोट से हो? Yes, ma'am. हाँ, तो आप एक बार तो आ जाओ कॉलेज. If your parents allows you. पर पेरेंट्स मना करते हैं. Okay, ठीक है. What about you, Meghna? ओके, तुम 15 से 19 मिड सैम देने के लिए आ जाओगे भवदी. ओके, गुड. यस मैम. ओके, मेघना, यू आर कमिंग इन द नेक्स्ट वीक. गुड. मोहम्मद कैफ, आर यू देयर मोहम्मद? ओके, आप कल आ रहे हो. ठीक है. ओके, निधि, प्रियांक. Ma'am, Udaipur, from Udaipur. ओके, सो आप नहीं आ सकते. Not प्रिया, right now, ma'am. ओके ओके, तो निधि आप यहाँ पे हो अभी राजकोट में? नहीं मैम, उदयपुर ही. ओके, ठीक ठीक है. प्रियांक, यू आर फ्रॉम राजकोट? यस मैम. ओके, तो आप कब आ रहे हो? मैम मैं पहले दिन आया था, उसके बाद उठ नहीं पाता मैं सुबह जल्दी. अच्छा, ऐसा है. तो आपने मेरा ऑफलाइन लेक्चर अटेंड किया है? हाँ, पहले दिन ही आया था मैं. अच्छा, ठीक है. सुशील? यस मैम, आई एम फ्रॉम मोरबी. ओके, तो आप तो आ सकते हो आराम से. नहीं मैम, बस भी नहीं आ रही है. मतलब मैं जा भी, रहा हूँ. अच्छा, तुम जहाँ रह रहे हो वहां पे बस नहीं आ रही है, बाकी हाँ मोरबी मैम. की बस आ रही है ना, कॉलेज तो आ रही हाँ है मैम, मोरबी की बसेस. पर पेरेंट्स भी मना कर रहे हैं. मतलब मैं एग्जाम देने के लिए तो आऊंगा 1 वीक के लिए उधर. ओके, एक वीक के लिए आओगे. ओके, यस फिर मैम. ठीक है, तब मिलेंगे. यस मैम. ओके, व्हाट अबाउट यू, विभूषा? आई थिंक विभूषा भी आई थी ऑफलाइन. यश? Yes, ma'am. I'm from हाँ Rajkot. हाँ, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? I found better working here because traveling time I can utilize 2 hours a day. So that's why I don't have any restrictions for my parents, but I'll think on it. ओके, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं देन यू शुड कम, राइट? They are allowing. हाँ, तो फिर ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पे. ऑफलाइन में क्या रहता है कि अटेंशन ज्यादा मिलता है ऑब्वियसली, राइट? अभी हम लोग हाँ, हाइब्रिड मोड पे लेक्चर ले रहे हैं, राइट? सो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है जो सामने बैठे हैं, उसके रिएक्शन से हमें पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है. सो उस हिसाब से हम लोग समझाते हैं, राइट? सो द concepts आर मोर क्लियर इन दी ऑफलाइन, राइट? यहाँ पे हम आपके एक्सप्रेशंस देख नहीं सकते. आप जब बोलोगे कि मैडम समझ में नहीं आया, तब हमको पता चलता है. But in the offline, we just identify your expression and then explain it accordingly. Yes, ma'am. So वो एक बेनिफिट है. हाँ, वो तो है ही. लेकिन ओके, सो एक बार ट्राई कर लो. आई एम नॉट फोर्सिंग यू एनीवन, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, राइट? आप अपने पेरेंट्स ना बोल रहे हैं, सो इट्स ऑल अप टू यू. पेरेंट्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते,
राइट। बट अगर ये पॉसिबल है, कोई पेरेंट्स के साइड से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सो एटलीस्ट यू कैन ट्राई 1 or 2 डे, राइट। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस है, देन यू कैन कम, राइट। देयर इज नो फोर्स फ्रॉम आवर साइड. Okay, so I think you all have completed this practical. So I just say that you start your CCNA course for now, right? क्योंकि practicals तो हमने 5 practicals already complete कर लिए हैं, right? अभी हमारे पास 5 या 6 practicals ही है, right? So अभी हमारी first priority होंगी CCNA course को complete करना. So just go through the chapters को thoroughly पढ़ लो एक बार, जो videos है वो देख लो, and just give the quiz exam and the chapter wise exam. जो भी activate हो गई है वो देना स्टार्ट कर दो इस लैब में, राइट, इफ यू हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिकल. हेलो मैम. यस प्रदीप. मैम मिड सेम में जो नितुल सर पढ़ा रहे वो चैप्टर पूरा आएगा? यस यस, वो पूरा आएगा. मैम बट सर का तो एक ही जैसे वीक में एक ही लेक्चर आता है, और सर का अभी तक सिर्फ 2 ही लेक्चर है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी सर ने मतलब ऐसा कुछ करवाया नहीं था, और आज वाले लेक्चर में सर आए नहीं थे. मतलब आए सर ने नहीं सिर्फ थे. ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया, ऑनलाइन में सर ने सेशन ही ज्वाइन नहीं करा था. सो आप लोगों ने हमको भी बोला बाद नहीं. में पता मैम हम लोगों को भी बाद में पता पड़ा कि सर ने सिर्फ ऑफलाइन वालों की ही क्लासेस ली. ओह तो माय मैम हमने गॉड. वो कोशा मैम को बोला था. किसको मैम बोला था? ऑफलाइन स्टूडेंट्स मैम ऑफलाइन कोशा मैम को, स्टूडेंट्स मैम हैं, उनसे हमारी मतलब सीसी. उनसे बात करा तो उन लोगों को मतलब मैंने कन्वे करने बोला सर को ज्वाइन होने को, तो उन लोगों ने कहा कि सर ने कहा कि आज नहीं मुझे पढ़ाना ऐसा, और फिर बाद में पता चला लाइक वो लोगों ने बोला कि कुछ पढ़ाया नहीं सर, बस ऐसे ही मतलब बैठे थे, मतलब बात करा उन्होंने ऐसा. तो ओके. सो कितना हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर में? एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि उसका स्टेटस हमारे पास नहीं रहता है. सो मैम ट्रांसपोर्ट लेयर ज्यादा है नहीं तो हुआ पूरा. है, क्योंकि अभी तक सिर्फ मतलब 2 या 3 लेक्चर ही हुए हैं, और उसमें भी एक मतलब जो 4th लेक्चर था उसमें सर ने एक असाइनमेंट दिया था, उसमें 2 या 3 कमांड्स थी. लेक्चर्स नहीं होंगे डियर, क्योंकि हमारा सेमेस्टर 18th जनवरी से स्टार्ट हुआ है, राइट. सो 18th जनवरी को मंडे था. सो जनवरी के मैम 2 वीक. एक लेक्चर तो ऐसा था कि उस दिन हमारी नेस्कॉम की वर्कशॉप थी, तो एक दिन तो उसमें चला गया. यस मैम, एंड फर्स्ट लेक्चर सर ने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कन्वे करा था, 2 या 3 एक लेक्चर लेक्चर नहीं में हुआ है. पूरा सर ने अपने बारे में बताया था, लाइक क्या क्या मतलब वो चीजें रहेगी मतलब सिलेबस में, और एक लेक्चर उसमें हो गया था. ऐसे करके मैम लाइक पढ़ाई सिर्फ 3 लेक्चर ही हुई है. ओके. सो कोई बता सकता है कि कौन सा टॉपिक था? मैम उसमें भी सर अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं प्रीवियस लेक्चर्स का, सर खुद से बहुत कम ही बताते हैं मतलब टॉपिक को, बाकी सब भी अग्री करेंगे इस चीज के लिए. ओके. सो कौन कौन से मैम सर ने टॉपिक पढ़ ऑलरेडी रखे हैं? वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं. मैम 1 मिनट देखना पड़ेगा. मैम पूरा सिलेबस आप रिपीट कर सकते हो, कौन कौन सा चैप्टर है एनसीएन? सीएन में कौन कौन से चैप्टर है वो? हाँ देर इन आर मिड सेम वन. मेनली. हाँ, मिड सैम 1 में चैप्टर नंबर 1 जो मैंने कंप्लीट करवाया, चैप्टर नंबर 2 जो हमने आज कंप्लीट किया, राइट, एप्लीकेशन लेयर, एंड चैप्टर नंबर 3 जो सर करवा रहे हैं या पूरा हो गया है, बट आई डोंट नो. सो इन टोटल देर आर 3 चैप्टर्स. ओके मैम.
Let me just show you the syllabus. So if you look at the syllabus, चैप्टर 1 जो 8 आवर्स का था वो हो गया है हमारा. चैप्टर 2 10 आवर्स का था वो भी हो गया है, राइट. एंड चैप्टर 3 जो सर ले रहे हैं दैट इज ऑफ 12 आवर्स, राइट. So if we start with the 18th January, then 18th January to 3rd January there is a 6 lectures of mine and 2 lectures of sir, right. February में भी सारे lectures थे यानी कि मेरे और सर के, right. So ट्रांसपोर्ट लेयर में ये सारी चीजें हो गई होगी शायद, I don't know, but these are the contents of this. I think I have uploaded the syllabus in the e-content. मैंने e-content में upload किया है. राइट. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है उस चैप्टर में, देन आई एम देयर, राइट. यू कैन आस्क मी, राइट. बट अभी के लिए आप लोग मिड सेमेस्टर के लिए मैंने आज क्लास में क्वेश्चंस लिखवाए थे, वो आपने नोट किया था? यस मैम. हाँ, वो सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो, राइट. और मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि वही क्वेश्चंस है मैं, क्योंकि उसमें पूरा यूनिट कवर हो जाता है, बट वो क्वेश्चंस को बहुत अलग अलग वे से पूछा जा सकता है, राइट. इट डिपेंड्स कि कौन कितने मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट. सो जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चंस वंस, राइट. कल हम लोग सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अ रिविजन पार्ट ओनली, राइट. और उसके भी कुछ क्वेश्चंस दूंगी मैं आप लोगों को जो आपको मिड के लिए प्रिपेयर करने हैं, राइट. सो ये आपको इस वीकेंड में आपको सैटरडे संडे मिलता है. सो जस्ट ट्राई टू गो थ्रू ऑल दी टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 and 2, राइट. और उसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन दी नेक्स्ट वीक. और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप नेक्स्ट वीक में डाउट पूछ सकते हो, बट अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, राइट. सो आई एडवाइस यू कि ये जो वीकेंड है सैटरडे संडे का वो आप यूटिलाइज करो, राइट. जो चैप्टर्स मिड सेमेस्टर में है एक बार देख लो कि क्या है उसमें, कौन सा टॉपिक में अभी रिवीजन की जरूरत है, कौन सा टॉपिक अच्छे से हो गया है, राइट. सो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो. So just go through the chapter number 1 and 2, right. और 3 भी देख लो एक बार कि क्या क्या रह जाता है, कितना कितना किस में आता है, राइट. सो एक बार सब देख लो एंड आई अपलोड दी पीपीटी ऑफ चैप्टर नंबर 2 इन दी ई कंटेंट. अभी ही अपलोड कर देती हूँ मैं.
हेलो मैम। Yes, Bhavdeep. मैम नितुल सर के अभी तक टोटल 4 लेक्चर हुए हैं हमारे, और एक लेक्चर हुआ है जिसमें हमने असाइनमेंट किया था एक। कौन सा असाइनमेंट? मैम सर ने एक दिया था जिसमें कमांड्स थी लाइक। मैम उसमें मतलब सर ने कुछ ऑप्शन मतलब कुछ कमांड्स मतलब कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, उनकी हमको कमांड्स लिखनी थी लाइक आईपी इंटरनल, आईपी एक्सटर्नल, डीएनएस, आईपी एड्रेस ऑफ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, मैक एड्रेस ऑफ योर सिस्टम, डिफॉल्ट गेटवे, डिस्टेंस फ्रॉम google.com। ये क्वेश्चंस थे मैम ऐसे 15। एक लेक्चर में वो कराया था। और फर्स्ट लेक्चर जो था सर का इंट्रोडक्शन था, उसमें मतलब सर ने सिर्फ बुक्स वगैरह, सिलेबस, लाइक वो चीजें बताई थी। सेकंड लेक्चर जो था उसमें सर ने मतलब ऐसे वीडियो, नॉर्मल जो वीडियो होती है ना वही स्टार्ट कर दी थी, मतलब उसमें उससे पढ़ा रहे थे सर। कौन सी वीडियो? मैम सर मतलब वीडियो से ही पढ़ाते, लाइक वो मैम सर लाइक के खुद मैम ये के लिंक है सर रिकॉर्डेड का, लेक्चर्स हैं पहले के, ओके। वही रिकॉर्डेड वापस लेक्चर्स है ऑलरेडी। देते हैं। हाँ, जो ऑलरेडी आप जैसे हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, वैसे उन्होंने जो पहले रिकॉर्ड कर रखा था वो हमारी क्लास में वापस प्ले कर देता है। ओके ओके। और फोर्थ लेक्चर में? मैम फोर्थ लेक्चर में सर ने मतलब वही थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में एक वो चार्ट वगैरह था वो बताया था, उसका एक चार्ट, और उसको एक्सप्लेन किया था बस। ओके। फिर सो आप एक बार सर से पूछ लेना कि मिड सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे उसके टॉपिक में से, ठीक है? क्योंकि उसके ओके बारे में मुझे वो मैम, क्योंकि बहुत पता नहीं इस वीक होगा। का लेक्चर तो मैम इस वीक का लेक्चर तो आज था जो चला गया, अब नेक्स्ट वीक आएगा सर का लेक्चर। ओके, आज था। मैम आज था बट हम्म सर हम्म आए नहीं हम्म थे। हम्म। तो आप लोगों ने मैसेज कन्वे करने को बोला, तो क्या बोला सर ने? मैम वो शायद भारती को आइडिया।
हाँ भारती हाँ क्या बोला? मैम वो मैंने बोला उन लोगों को, तो उन लोगों ने कहा कि सर नहीं आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला कि आज क्लास नहीं लेंगे ऐसा कुछ। एंड फिर बाद में उन लोगों ने बताया कि आज कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं, बस ऐसे ही बातें करा उन्होंने सबसे ऐसे ही। ओके 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 ठीक है। सर का अब लेक्चर आता है तो आप एक बार बात कर लेना कि अब क्या होगा सिलेबस में, मीन्स मिड सेम में, क्योंकि अब हमारे पास क्योंकि एक मैम वीक अभी है। तो क्योंकि वो वाला जो चैप्टर है उसका तो अभी तक लाइक 1/4 पार्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ओके और एग्जाम से पहले अभी एक ही लेक्चर है सर का। हम्म। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्योंकि हो मैम सकता फोर्थ है। वाला जो लेक्चर था उसमें सर ने है ना थोड़ा सा मतलब सेकंड थर्ड में पढ़ाया था, फोर्थ में थोड़ा सा एक ग्राफ मतलब एक चार्ट बताया था, उसके बाद सर ने लाइक कमांड सी करवाई थी, पिन कमांड थी, आईपी कॉन्फ़िग वाला था, और ये वाली जो कमांड हमने सर ने। प्रैक्टिकल में यस किया मैम, था जो वो हमने सब। सेकंड प्रैक्टिकल 2 में किया था। हम्म। डीएनएस कैसे फाइंड करना है, एक दो सॉफ्टवेयर्स थे, ओके वही चीजें ओके करवाई थी सर ने। ओके ठीक है। नेक्स्ट वीक में जब लेक्चर आता है तब सर से एक बार पूछ लेना कि आपके पोर्शन में से मिड सेमेस्टर में क्या क्या है, ठीक है? ओके मैम। हम्म ओके। और हमारे सिलेबस में से कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। नहीं मैम, ना ठीक है, दोनों चैप्टर्स बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने। फिर भी अगर कोई डाउट यस रह मैम, यस जाता मैम। है, आई विल जस्ट सॉल्व योर डाउट, डोंट वरी अबाउट दैट। मैम वो वन नोट वाली फाइल आप अपलोड कर देना। हाँ हाँ, वन नोट वाली फाइल मैं अपलोड कर दूंगी। मैंने सेकेंड चैप्टर की पीपीटी अपलोड कर दी है अभी, राइट? सो ओके मैम। वन नोट वाली पीपीटी मुझे, वन नोट वाला फाइल मुझे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना पड़ेगा। मैं देख लेती हूँ एक बार। मैम वो वन नोट में भी डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हो। हाँ, सबके पास पर वन नोट होगा? मैम ऑनलाइन रन हो जाता है फ्रॉम ठीक है, तो मैं वही फाइल अपलोड कर देती हूँ। मैं वन नोट वाली जो फाइल है वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर रही हूँ, राइट? गूगल क्लासरूम ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो मैं यस मैम। उसमें अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? ओके मैम।
हेलो मैम। यस। मैम सर ने कुछ है ना 2 स्टडी मटेरियल कुछ अपलोड कर रखे हैं। क्या है वो? मैम एक तो टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर है, हम्म। एक तो और? वर्ड फाइल है टीसीपी प्रोटोकॉल, एक पीडीएफ है हम्म। नेटवर्किंग नोट्स से रिलेटेड। ओके, मैम उसमें 6 सिलेबस सेम का कवर अप बीटेक हो जाता है? मैम इस पे तो लिखा हुआ 6 सेम बीटेक कंप्यूटर नेटवर्क 2। ओके। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू लेयर आर्किटेक्चर्स। हम्म। मैम ये शायद सर के नोट्स हैं, लाइक 2011 के नोट्स हैं। हाँ, हो सकता है। मैम सर ने वो अपलोड कर रखे हैं। वहां बट से उसमें समझ रेफरेंस। नहीं, मैम समझ नहीं समझ आ में। रहा, नहीं हम्म। आया कुछ भी। लाइक मैम टीसीपी प्रोटोकॉल्स भी है उसमें, क्लाइंट रिक्वेस्ट हम्म। एंड डेटा ट्रांसफर के, ओके। डेटा ट्रांसफर के फेस है, हम्म। स्लाइडिंग विंडो फॉर टीसीपी प्रोटोकॉल एंड स्लाइडिंग विंडो फॉर डेटा लिंक लेयर हम्म। एंड। ठीक है, एक बार देख लो, अगर कुछ भी ऐसा है तो आप बता सकते हो। राइट, अगर सर को एक बार पहले बोलो, यस मैम। फिर सर अगर कुछ कहते हैं तो फिर अगर हो जाता है तो फिर ठीक है, वरना फिर मुझे बोल दो, मैं अगर ऐसा कुछ होगा तो मटेरियल अपलोड कर दूंगी। ठीक है? ओके मैम। ये पूरी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वन नोट फाइल है, वो अपलोड कर रही हूँ। Okay, so I uploaded that content in the Google Classroom. Just go through once.
उसमें कुछ कंटेंट होगा वो रिपीटेड होगा क्योंकि दूसरी क्लास में करवाया है, सो वो कुछ पेजेस होंगे वो रिडंडेंट हो सकता है, राइट। तो आप अपने हिसाब से रिमूव कर लेना। बाकी का ऑलमोस्ट कंटेंट डीएनएस तक का कंटेंट पूरा उसमें कवर अप हो जाता है। जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है क्लास में वन नोट में वो सारी चीजें कवर अप हो जाती है उसमें। फिर भी अगर कोई टॉपिक बच जाता है पीपीटी में है, अगर पीपीटी में भी नहीं है सो यू कैन कांटेक्ट मी कि ये टॉपिक है, किसी में भी नहीं है सो वो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। बट आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो गया है, बट फिर भी एक बार देख लेना। मैम आपने अभी क्लासरूम में डाला? हाँ, वन नोट वाला कंटेंट जो है वो क्लासरूम में डाला है और पीपीटी है वो ई कंटेंट में। ओके।
CCNA कोर्स अगर कर रहे हो और उसमें कोई डाउट है तो आप यहाँ पे रह के सॉल्व कर सकते हो. That's why I have given you a time for the CCNA course. बाकी लैब तो अभी 10 मिनट में खत्म हो ही रही है. Ma'am, what is to be remembered in this course and all that thing, because they have provided content very vastly. हाँ, इसलिए तो पूरा रिफर करने के लिए टाइम दिया जाता है. जनरली लैब्स में यही कोर्स करवाया जाता है, राइट? बट हमारे पास प्रैक्टिकल्स है, सो हम लोग वो एक्स्ट्रा में कर रहे हैं. Okay. सो आपको प्रैक्टिकल्स तो मैं करवा ही रही हूँ. प्रैक्टिकल्स में हमको ज्यादा से ज्यादा 35 to 40 या 50 मिनट्स लगते हैं अगर बड़ा प्रैक्टिकल है तो. बाकी तो आपको कोर्स ही करना है, ये वीडियोस देखने हैं और सारा कंटेंट पढ़ना है. और जो हम क्लासरूम्स में पढ़ते हैं और यहाँ पे जो कंटेंट दिया गया है, तो वो दोनों सेम ही है या फिर कुछ डिफरेंस भी है? हाँ, रिलेवेंट है, सेम तो नहीं है बट रिलेवेंट है. ये CCNA जो कोर्स में दिया है वो काफी डिटेल में दिया है और एनिमेशन के साथ दिया है, तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा. ओके. हाँ, वो तो इंटरेक्टिव्स वगैरह थोड़े. हाँ.
3rd March, TP1.
Okay, so time for attendance. थर्ड TP1 कौन सी बैच है ये? सी बैच. Okay, 21, Yes, ma'am. 34, 35. मैम 34. Okay, 34 present है. 35, 36, 37, Yes, ma'am. 38. Okay, 38, 39, Yes, ma'am. 40, Present. 43, मैम 45. 43 Okay. प्रेजेंट. 45, 48, Present, ma'am. 49, 50, 51, 52, Present, ma'am. 53, Present, ma'am. 54, 55, Present, ma'am. 73. Okay, so absent students 35, 36, 38, 45, 51, 54. Okay, so thank you all of you. You may leave the session. Hello, ma'am. Yes.